Good morning, my dear friends. Welcome to the International Fab Talks. My dear friends, it's a honor and a privilege to have our special guest with us, Professor Garima. We'll get to know about this young lady. She's a young person with a beautiful mind and soul, a great zeal to inspire the world. She would like to create a wonderful impact in everybody's life. And today she is here with us to share her journey and to make you understand how you could also be a great contributor to the world just like her. She's a young scientist, a professor, and much more to it. We'd like to welcome our special guest, Dr. Garima. Hello, ma'am, and welcome to the session. Hello, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am, for accepting our invite. Thank you so much. Thank you very much for a nice introduction, ma'am. Thank you, dear. Dear ma'am, we'll introduce you now officially to everybody. With your permission, I will take your permission and introduce you officially. Yeah, ma'am. Yeah. Thank you. Dear friends, let's get to know about our guest and celebrity today in a more official way. It's time to introduce our guest. She is Professor Dr. Garima Sharma. I'd like to repeat that. Professor, and she's a doctor as well, Garima Sharma. She's completed a PhD in chemistry. She's a professor, a young scientist, an author. That's a surprise, an author, a young entrepreneur, and a career counselor. And more to that, she's a mentor, she's a guide, and she's a wonderful teacher to the world that you could also be the next Garima Sharma and create a beautiful, atmosphere in this universe. She has more than 15 years of experience in the academic sector and as well as in the administration part. As a professor, deputy director researcher, including postdoctoral doctoral researcher. I repeat that again, a professor, deputy direct research, including postdoctoral researcher. She's all into it, giving her best, wanting to contribute so much, and she loves to learn. And the best part is it, after learning, she wants to spread that knowledge with others. That is the most important part. My dear friends, it also includes that she loves extensive research. During her postdoctoral session and visiting fellowship in the University Sans Malaysia, Penang, Malaysia, she felt the need of imparting a quality practical experience to the teenagers, to the teens across the world, as well as the youth in every sphere of their life, be it personal, professional, fun, entertainment, in all ways a holistic program she would like to create and would like to focus on that for the youth and the teenagers of the world. As a young scientist, she is exploring and researching the strategies to overcome communicable diseases. And that's really very nice. We would like to know more about it. Her ultimate goal is always to add knowledge to a large scientific community, not to one or two, to a large scientific community across the globe, and help to fuel new discoveries in the future. She wants not only to create that research space for herself, she wants other young people to come into it, no matter what age you are. She wants you also to become great inventors, discoverers in the near future. Dr. Garima Sharma has also organized several social and national events. And ask me why? For the benefit of students and academicians. She loves to spend time with students. She loves to improve the academic sector, especially of India, where it requires a vast change. And dear friends, with this, she would love to, go on to different platforms and present webinars and seminars and take training sessions, coaching sessions. Apart from that, she is in this innovative platform where she would want to create that beautiful world for everyone. She has benefited thousands of undergraduates, postgraduates, researchers, faculty members by imparting knowledge or handing down that beautiful information which she has learned. She wants to hand them down to all of them during her training sessions. In various technology-based latest tools, faculty development programs, skill development programs, various workshops, conferences, symposiums, and seminars. And she would love to be the best in whatever she does. And she gives a lot of hard work and her time to put out the best. And today you could also listen to her story, her journey, and be the next Dr. Garima Sharma. Ma'am, welcome to the session. Thank you, ma'am. Thank you very much for a nice introduction, ma'am. Thank you, dear. Thanks for accepting the invite. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, dear.
Dear friends, let's get now into this interview session, the mode of the interview and the feel of the interview to get to know our special celebrity, Dr. Garima Sharma. Dear ma'am, how would you define yourself? Aap kaun hai ma'am? Who is the real Dr. Garima Sharma? रियल डॉक्टर गरिमा शर्मा एक बहुत ही सिंपल सी लड़की है जो कुछ करना चाहती है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए। और बचपन से ही मेरा ये सपना था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं। और धीरे धीरे इस सपने ने मुझे एक स्ट्रेंथ दी, और जिसकी वजह से आज मैं कुछ कर पा रही हूँ अपनी सोसाइटी के लिए। तो मैं बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ हूँ, और बहुत ही कम कम लोगों से कम बातचीत करती हूँ, बहुत शांत स्वभाव की हूँ। तो बस अपने काम में लगे रहना ये मुझे पसंद है। बहुत अच्छा मैम, अपने काम में लगे रहना, खुद बढ़ना और दूसरों को भी आगे बढ़ने देना। जी मैम। इट्स रियली नाइस। सोसाइटी के लिए कुछ करनी है, वो आपका इच्छा बचपन से ही था, तो अभी आप पूरा कर दे रहे हैं उसको, तो बहुत हाँ अच्छी मैम, बात। वो धीरे धीरे मैं उसमें लगी हुई हूँ अपने इस मिशन में। और आप जैसे लोगों की हेल्प की वजह से, जैसे आप आए और आपने कहा कि आप मैम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो मैम इसकी वजह से बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत एनकरेजमेंट मिलता है मुझे, और जिसकी वजह से मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह कर पाती हूँ। दैट्स रियली नाइस। आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल है, पोलाइट है। यस मैम। वेरी नाइस। शांत स्वभाव के हैं, दैट्स वेरी नाइस। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं मैम जो इस तरह के शांत स्वभाव के हैं, जो डाउन टू अर्थ हैं, जी प्रैक्टिकल जी हैं। जी मैम। इट्स जी वेरी मैम। नाइस, वंडरफुल मैम, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस टुडे। यस मैम। जी मैम, ऐसा देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, जो बच्चे भी हैं, टीनेजर्स, यूथ और हम लोग सब स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग को स्ट्रेस डी स्ट्रेस कैसा करना है, स्ट्रेस लेवल्स को कम कैसे किया जा सकता है, बता सकते हैं मैम? यस मैम, पहले मैं भी इस स्ट्रेस के दौर से गुजर चुकी हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, रात को नींद नहीं आ पाती थी, सोचती रहती थी कि काम कैसे होगा, मैं किस तरह से काम करूं, कहाँ जाऊं, कौन से डायरेक्शन में मुझे जाना है। बहुत सारे यूथ के साथ भी इस तरह होता है, हम लोग नहीं समझ पाते हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन सा काम करना है, और हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो हम उस तरह फंसे रहते हैं उन सब में। तो इसके लिए फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और जब भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है मैं मेडिटेशन करती हूँ, और बार बार दोहराती हूँ खुद से कि नहीं मैं कर सकती हूँ। यहाँ तक कि इस स्टेज में आकर भी हम हम स्ट्रेस ले लेते हैं कभी कभी। दिन में एक बार तो ऐसे जरूर एक ऐसी फेज आती है जब हमें लगता है कि कैसे होगा ये काम, बहुत स्ट्रेस है। तो उस वक्त मैं अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए मेडिटेशन का यूज करती हूँ। मैं ध्यान करने बैठ जाती हूँ, या फिर शांत होकर सोचती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन कैसे निकालें। तो हमारा जितना भी यूथ है, मैंने आजकल देखा है, इवन छोटे छोटे बच्चे 4 to 5 years के बच्चे वो भी स्ट्रेस लेते हैं, उनके ऊपर भी इतना स्ट्रेस है। तो कहीं ना कहीं हमें इस स्ट्रेस को बाहर निकालना है, और हमें इस तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल सके। दूसरा, मैं गार्डनिंग करती हूँ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। कभी कभी जैसे हमारे गंगा किनारे बैठ जाती हूँ जाकर, सिर्फ पानी को देखती हूँ, तो उससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। तो मैं इस तरह की प्रैक्टिसेस करती हूँ। बहुत नाइस, वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया। मेडिटेशन है ना, पानी जी को, मैम। यू सिट डाउन नियर द वाटर, थोड़े पानी के साथ सामने बैठ के थोड़ा पानी को देखते हुए, वो जैसे लहर जाती यस रहती मैम। है यस उसको मैम। देखकर यस मैम। यू कूल डाउन, दैट्स वेरी नाइस। तो आपका मेडिटेशन करना अच्छा लगता है हमें भी, कि भाई दैट इज अ ब्यूटीफुल वे टू डी स्ट्रेस। और ये भी एक सच कहा आपने कि भाई दिन में कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि भाई कैसे करें, तो थोड़ा सा चिंता होने लगती है, स्ट्रेस हाँ होने मैम। लगती है। मैम जरूर आता है एक बार, दिन में यस एक बार ये फेज जरूर आएगा। जी अगर हम अपने पूरे 24 आवर्स के साइकिल को देखें तो जी एक बार ऐसे हमें लगेगा कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, जी जी लेकिन खुद को कंटिन्यूअसली हमें मोटिवेट करना है। तो इन तरह की प्रैक्टिस से हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जी जी मैम, आई रियली एग्री। आपने जो अभी कहा बहुत सच है कि भाई दिन में कम से कम एक बार तो ऐसे लगती है कभी ना कभी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे होगा। तो आप यस। बहुत आपके तरीके जो है डिस्ट्रेस करने का, गार्डनिंग भी बताया आपने, जी राइट, मैम। मेडिटेशन, वॉचिंग द यस मैम। वेव्स। यस मैम, यूड लाइक टू ऐड समथिंग? यस मैम, मैं कभी कभी लॉन्ग वॉक पर भी जाती हूँ, कि लॉन्ग वॉक पर चले जाओ अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए। और कभी कभी
अच्छा म्यूजिक, रिलैक्स वाला म्यूजिक भी सुन लेती हूँ। म्यूजिक क्योंकि हमें डिस्ट्रेस करता है। या फिर कुछ मोटिवेशन की वीडियोस होती हैं, वो भी सुनती हूँ। और कुछ लिखती भी हूँ कभी कभी। या कुछ अगर मुझे कुछ गाने का मन है, कुछ भजन या कुछ और इस तरह के मोटिवेशन कोट्स, तो वो भी दोहराती हूँ। ये मैं 5 5 मिनट्स के इंटरवल पर कर लेती हूँ। जैसे 2 आवर में 5 मिनट में के लिए कर लिया, इससे मैं डी स्ट्रेस ये प्रोसेस रहती हूँ पूरे दिन में। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया, बार बार हमें खुद को मोटिवेट करना है, तो ये जी, तरीका है। हर 1 घंटे में या 2 घंटे में ये मैं करती रहती हूँ मैम, खुद को डिस्ट्रेस करने के लिए। वेरी गुड मैम, वेरी नाइस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच डियर, दैट्स रियली वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम उस आंसर के लिए। हमें भी कुछ सीखने को मिला आज कि भाई आसान तरीका क्या है डिस्ट्रेस होने का। वेरी जी नाइस डियर मैम। द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। आप तो बन गए हमारे लिए इंस्पिरेशन। आपने इतना सब कुछ हासिल किया, अलग अलग जगहों में। एक साइंटिस्ट हैं आप, प्रोफेसर हैं आप कोच भी है। यू हैव जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इतने सारे फेदर्स है आपके कैप में कि भाई इतने अचीवमेंट्स हैं। आप इंस्पिरेशन बन गए हम सबके लिए। तो आपका इंस्पिरेशन कौन है आपकी जिंदगी में? आप आज जहां पर हो आप, तो आप यहाँ तक आने का कोई ना कोई इंस्पायर करे होंगे आपको, तो वो कौन है? यस मैम, ऐसे तो बचपन से ही मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें कैसे करना है वो काम। तो फिर मेरी लाइफ में भी एक ऐसे मेरे टीचर आए, या मेरे गाइड बोल सकती हूँ मैं उनको, मैं उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगी, कि उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी लाइफ का ट्रू मीनिंग ये है, तुम्हें इस तरह से ये काम करना है। और जब से वो मुझे मिले हैं, तो मैं वो काम अपना सही तरीके से कर रही हूँ, और करती जा रही हूँ, लगातार बढ़ रही हूँ। चाहे मैं स्लो करके वो काम कर रही हूँ, चाहे मेरी मतलब चलने का प्रोसेस स्लो है या कभी कभी फास्ट हो जाता है, पर कंटिन्यूअसली हमें मूव ऑन करना है, और मैं मूव ऑन कर रही हूँ। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस डियर, थैंक यू सो मच डियर मैम। द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप इज, क्या आप किताबें पढ़ते हैं? अगर किताबें पढ़ते हैं आजकल, तो कौन सी किताब आपको बहुत अच्छी लगती है और हम भी उससे कुछ सीख सकते हैं? मैं किताबें पढ़ती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, खुद को डिस्ट्रेस करने के लिए पढ़ती हूँ। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन सबसे अच्छी किताब मुझे पावर ऑफ नाउ लगी है। उसमें उसमें बताया है कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, या तो हम पास्ट में रहते हैं, हम कभी कभी हमें पास्ट की बातों को याद करते रहते हैं, या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं, फ्यूचर के सपने देखते रहते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में कभी नहीं रहते। उस मोमेंट में अपना पूरा फोकस करके कभी हम काम नहीं करते, कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में। तो इस तरह से हम चलते हैं। तो वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपना काम कर सकते हैं। दूसरा, मैंने योग सूत्र पढ़ी, योगा से रिलेटेड। उसमें किस तरह से आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो उस बुक को फॉलो करके। तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प की। और वैसे मैं मेडिटेशंस की बहुत सारी बुक्स पढ़ती रहती हूँ, पर ये जो 2 किताबें हैं इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। जी मैम, दैट्स रियली वेरी नाइस डियर मैम। आप बचपन में कैसे थे? नटखट थी, शर्मीली थी, या खूब मस्ती हाँ। मजाक करते थे? कैसे, हाउ वर यू? मैम, बचपन में मैं बहुत ही शांत स्वभाव की थी। और बस जैसे कुछ बच्चों को खेलना पसंद है, मैं वो सब नहीं करती थी। मैं अपना खुद का काम करती थी, कुछ क्रिएटिव करती रहती थी, ड्राइंग करती थी या लिखती भी रहती थी। बचपन से ही मुझे शौक था। और बाहर ज्यादा खेलने भी नहीं जाती थी। तो मैं बस अपने आप में लगी रहती थी, अपना अपने आप करते रहो, अपने अपने धुन जैसी रहती है ना, तो उस तरह से करती रहती थी। वेरी नाइस, बहुत खूब मैम। दैट्स वेरी नाइस कि भाई आप इस शांत स्वभाव के हैं कि नहीं, किसी हाँ से जी। कुछ जी बैर नहीं रखना, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ जी जी। मुठभेड़ जी। नहीं, तो जस्ट विद योर सेल्फ। दैट्स वेरी यस नाइस, मैम, यस। ब्यूटीफुल डियर मैम। आप इस दुनिया में, हम लोग सभी हैं अभी, तो आपको लोग क्यों याद करें और कैसे याद करें? लोग मुझे मैं सोचती हूँ कि लोग मुझे कैसे याद करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की आत्मा, जो उनकी सोल है, उसको टच करना है, कुछ अच्छा काम करके उनकी परेशानियां। क्योंकि अभी हम चारों तरफ देखते हैं, लोग बहुत परेशान हैं। सबके, किसी के पास पैसा नहीं है, वो पैसे को लेके परेशान है। किसी के पास सक्सेस नहीं है, तो वो सक्सेस को लेके परेशान है। हर तरह से परेशान है। अगर किसी के पास पैसा है, तो उसके पास हेल्थ नहीं है। तो कोई हर तरह से वो परेशान है। तो मैं उन सब की वो परेशानियां दूर करना चाहती हूँ,
कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स फ्री लाइफ उनको मिले, मैं ये चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं अपने खुद का एक ऐसा इंस्टीट्यूट या आप आश्रम बोल सकते हो वो बनाना चाहती हूँ, जहाँ पर लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें या इस तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जिससे वो स्ट्रेस फ्री हो पाए। क्योंकि हम काम तो कभी भी कर सकते हैं, पर जो ये मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ की, ये बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने जैसे आपको बताया, छोटे छोटे बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, बड़े को तो छोड़ो। हर अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो वो सबसे पहले अपनी परेशानी लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हेल्थ नहीं है, पैसे नहीं है, कैरियर अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो प्रॉब्लम की जड़ क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से है। तो उन सबको, उस सब पर मैं वर्क करना चाहती हूँ। तो लोग मुझे इस तरह से याद रखें कि कुछ ना कुछ मैं लोगों को दे के जाना चाहती हूँ। वंडरफुल, दैट्स रियली वेरी नाइस मैम, बहुत खूब। डियर मैम, आप कभी छुट्टियां ले लेते हैं, कभी छुट्टी मिलती है आपको? हाँ मैम, छुट्टियां लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलती है। लेकिन हम छुट्टियां, क्योंकि छुट्टियां हमें हेल्प करती है डी स्ट्रेस करने में। तो जो लोग बहुत काम करते हैं और कभी कभी वो खुद पे ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको रिलैक्स जरूर करना चाहिए। दिन में एक बार, 24 आवर में एक बार जरूर, आधा घंटा तो जरूर अपने साथ बिताना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं या नहीं, कहीं हम कुछ इस तरह से गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो वो हमें जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल हम इतने बिजी हैं कि हम कभी खुद के बारे में नहीं सोचते, खुद के साथ बात नहीं करते। तो हमें खुद के साथ बात करनी चाहिए कम से कम आधा घंटा। और छुट्टियां हमें इसमें हेल्प करती हैं, डी स्ट्रेस करती हैं। तो हमें छुट्टियां जरूर लेनी चाहिए। हालांकि छुट्टियां सबको कम मिलती हैं, उसमें भी लोग बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। जी जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, ये आंसर बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको छुट्टियां मिल गई तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, कौन से मैम हॉलीडे वैसे डेस्टिनेशन? वैसे तो मुझे मतलब इंडिया बहुत पसंद है, लेकिन मैं आइसलैंड जाना चाहूंगी। वहां पे मतलब मैंने बहुत सारा देखा है, उसके बारे में पढ़ा है। तो वहाँ की जो ब्यूटी है मुझे, क्योंकि मुझे नेचर हमेशा अट्रैक्ट करता है। इंडिया में भी बहुत सारी जगह है। इंडिया में मैं हम केरल में जाना चाहूंगी और बाहर आइसलैंड। तो वहां पर मैं अपनी छुट्टियां बिताना चाहूंगी बहुत नेचर के साथ। दैट्स रियली वेरी नाइस, वेरी नाइस। डियर मैम, ऐसा, और हम चाहते भी हैं आपको छुट्टियां मिल जाए और आप केरल भी जाए और आइसलैंड भी जाए। जी दैट्स मैम। रियली नाइस। डियर मैम, आप खुद में आप एक, ये मेरा गुण है, मैं गरिमा हूँ, ये मेरा गुण है, मैं पहचान लिया इस गुण को और मुझे अच्छा लगता है कि ये गुण मुझ में है। तो ऐसा कौन सा है मैम वो इनर कोर क्वालिटी आपका जो आपको खुद को अच्छी लगती है और आप आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं कि गरिमा जी ये है जी और मैम। मैं पसंद हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ क्योंकि ये गुण मुझ में है। वो ऐसे कौन सी गुण है मैम? जी, वैसे तो खुद को अपनी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें और नेगेटिव जो अपने गुण है पता होने चाहिए। तो मेरा सबसे पॉजिटिव गुण क्या है कि कभी हार ना मानना। अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो मैं स्ट्रगल करती रहूंगी और मैं कभी हार नहीं मारूंगी, गिव अप नहीं करूंगी। तो ये मेरा सबसे अच्छा गुण है। और मैं लगी रहूंगी उसमें करने के लिए, चाहे वो आज हो या कल हो या फिर बाद में हो। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मैं ये कर लूंगी, और मैं उसमें लगातार उसमें लगी रहती हूँ, कभी गिव अप नहीं करती रहती हूँ। और खुद के साथ, खुद के ऊपर विश्वास होना भी एक मेरा सबसे बड़ा गुण है। मुझे खुद पर विश्वास है कि हाँ, कैसी भी सिचुएशन हो मैं उसमें कर लूंगी और करके दिखाऊंगी और कभी हार नहीं ब्रिलियंट, मानूंगी। वंडरफुल, रियली नाइस। डियर मैम, आप कभी मूवीज वॉच करते हैं? अगर मूवीज वॉच करते हैं, आपका फेवरेट मूवी का नाम क्या है मैम? मैम ऐसे ज्यादा मूवी मैं देखती नहीं हूँ, तो कोई ऐसी फेवरेट मूवी नहीं है। बताओ कब मूवी देखती हूँ मैं। कोई एक मूवी भी ऐसा नहीं है कि जो जो आपको याद आ रही है अभी कि भाई हाँ ये मूवी में मुझे अच्छा प्रभाव था समाज पर भी और मेरे जीवन में भी? मैम इस तरह से तो जैसे मुझे कुछ मूवी है, पर इस तरह से कोई ऐसी मूवी नहीं है कि जिसने बहुत प्रभाव डाला हो। हाँ, कुछ कुछ मूवी कहीं कहीं से मुझे इंस्पायर करती हैं, तो मैं वहां से वो चीज उठा लेती हूँ, ले लेती हूँ अपने लिए। जी मैम, जी। जी मैम, आप
अगर आपको एक बड़ी सी लॉटरी मिल गई, एक बड़ा सा जैकपॉट मिल गया, तो क्या करेंगे आप? मैम अगर मुझे बड़ी लॉटरी मिली तो मैं वो सब उस वो सोशल सर्विस के लिए यूज करूंगी, क्योंकि वही मैं करना चाहती हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो अगर वो मुझे मिला तो मैं उनके लिए काम करूंगी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत खूब। मैम, आप जब स्कूल में और कॉलेज में थे तो स्पोर्ट्स में, गेम्स में हिस्सा लेते थे? यस मैम, मैं स्कूल में कॉलेजेस में स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थी, और जैसे रेस में हम लोग हिस्सा लेते थे। और जो पहले है तो खो खो इस टाइप के गेम होते थे, अब तो नहीं होते। खो खो होता था और ये रेस होती थी, या वो रस्सी कूदने वाला गेम होता था, तो उस सब में हिस्सा लेते थे। अब तो थोड़ा गेम चेंज हो गया है, लेकिन पहले हम इस टाइप के गेम में हिस्सा लेते थे। वंडरफुल वंडरफुल मैम, दैट्स रियली वेरी नाइस। डियर मैम, आप अभी इस संसार में जी बहुत सारी बदलाव आनी है, तो आप कौन से एरिया में बदलाव लाना चाहेंगे? मैम वैसे तो इस अभी हम जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बदलाव आ रहा है। तो मैं अपना जो काम है उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम बिना टेक्नोलॉजी के मूव ऑन नहीं कर सकते। और कोविड के बाद तो हम बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि ऑनलाइन सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, यानी यानी एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई है। तो मैं अपने जो मेरा काम है मैं उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ठीक है टेक्नोलॉजी बहुत हमें वो करती है, हमें अपने ऊपर हावी करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हम काम भी कर सकते हैं अच्छी तरह। तो जो मेरा काम है मैं उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इनफैक्ट हम सबको करना है मैम, हम जी मैम। सबको करना है। ऑल ऑफ अस शुड गेट अटैच्ड एंड कनेक्टेड एंड लर्न द न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस यस मैम। and go ahead in our career, in our personal lives as well. Like Dr. Garima Sharma ma'am, who says that she's going to use technology and change the world. Yes dear, wonderful ma'am, बहुत खूब। डियर मैम, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर बता सकते हैं मैम आपके नजरिए से, कि भाई स्मार्ट वर्क क्या होता है? थोड़े लोगों को नहीं मालूम कि भाई ये स्मार्ट वर्क है या हार्ड वर्क है, तो उस कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आप कैसे उसको जी ये कर सकते हैं? हार्ड वर्क हम सभी करते हैं, क्यों ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड वर्क नहीं करता है, लेकिन उस हार्ड वर्क को हम स्मार्ट वर्क में कैसे बदले। हमें प्लानिंग की जरूरत होती है उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में चेंज करने की। जैसे कि हाउसवाइफ है, वो घर में रहते हैं पूरा दिन, लेकिन वो उसी वर्क को पूरे दिन करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो एक वर्किंग वुमेन 2 to 3 आवर्स में कर लेती है और अपनी जॉब पर भी चली जाती है, जैसे घर के काम है। तो उसी तरह हमें अपने आप को स्मार्ट बनाना है, प्लान करके। अगर हमारे पास 5 मिनट भी है तो हम उसको प्लान करके रखिए कि 5 मिनट में मुझे ये वीडियो सुनना है या मुझे ये मोटिवेशन वाली चीज सुननी है, तो मैं उसको वहां पे प्लान करके रखूंगी। या फिर पूरे दिन मेहनत ना करके कोई ऐसा 4 घंटे ना काम करके मैं 1 घंटे काम कर लूंगी, और उसमें मैं फट स्मार्ट वर्क करूंगी। हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, मजदूर भी हार्ड वर्क करता है, हम भी हार्ड वर्क करते हैं, तो डिफरेंस क्या है फिर? हमें डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है कि हम अपनी चीजों को कैसे प्लान करते हैं, हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। पहले से प्लान हो कि अगले दिन मैं क्या करूंगी, उसके नेक्स्ट डे में क्या करूंगी। अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 वीक की प्लानिंग है, टाइम टू टाइम हमारे पास टाइम शेड्यूल है, तो फिर हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, अपने उस टाइम को बचा सकते हैं, और अपने उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में चेंज कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट मैम, वेरी परफेक्ट, थैंक यू, दैट्स रियली नाइस। डियर मैम, आप रिटायर होना चाहेंगे थोड़े दिनों के बाद में? थोड़े दिनों के नहीं, थोड़े सालों के बाद में, मे बी 70 years, ऐसा कुछ रिटायरमेंट का प्लान है या नहीं है मैम? मैम कोई प्लान नहीं है, मैं हमेशा काम करते रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कुछ ना कुछ करने से। क्योंकि आपको पता है कि जब लोग रिटायरमेंट के बाद जब अक्सर लोग काम नहीं करते तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं रहता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो काम ना करे, रिलैक्स करे, लेकिन कभी कभी कुछ अपनी पसंद के काम करना भी हमें रिलैक्सेशन देता है। तो मैं अपनी पसंद के ही काम करते रहना चाहूंगी, कभी रिटायर होना नहीं चाहूंगी। जी मैम, जी मैम, बहुत शुक्रिया, दैट्स रियली नाइस। डियर मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इज, आपका फेवरेट कलर कौन सा है और क्यों?
वैसे मेरा फेवरेट कलर वाइट है, आज मैंने ब्लैक पहना है, लेकिन वैसे वाइट क्योंकि एक प्रतीक है सात्विकता का, और वो सारी नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब कर लेता, तो इसलिए मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है। और एक शांति देता है व्हाइट कलर, तो इसलिए मेरा फेवरेट व्हाइट है। जी मैम। जी मैम, आज यहाँ तक आप सफल होके आए हैं ना, तो जी आपके मैम। कोई बेस्ट फ्रेंड्स का साथ हुआ होगा, उनका हेल्प हुआ होगा या उनका एनकरेजमेंट हुआ होगा आपके लाइफ में, शेयर करे होंगे कि भाई आप गरिमा जी ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो फ्रेंडशिप, आर देयर एनी फ्रेंड्स जिनके नाम आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये फ्रेंड्स हमारे साथ थे, ऐसे कोई है एक्चुअली आपके? मैम, मैंने जैसे बोला मैं बहुत शांत स्वभाव की थी, तो मैं दोस्त बहुत कम बनाती थी। मैं खुद की ही दोस्त रही हूँ हमेशा से, मैंने बहुत दोस्त कम बनाए हैं। और जो भी बनाए हैं वो इतना ऐसे वैसे फ्रेंड नहीं थे। मतलब जैसे मैंने कुछ बच्चों को अभी भी देखा है कि अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती थी। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ पढ़े और रहे, लेकिन वो सब छूट गए, क्योंकि ऐसे आपके भी छूट छूट गए होंगे बहुत सारे फ्रेंड्स। वो जी सब छूट गए, और अगर मिलते भी हैं तो वो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। तो ऐसा जैसे कोई फ्रेंड नहीं था, मैंने खुद को ही अपना दोस्त बना लिया। जी, वो बहुत बढ़िया है। खुद के दोस्त बनना, खुद को समझना, खुद को जी हिम्मत मैम। देना, वो बहुत जी बड़ी मैम। बात है। और मुझे भी अच्छा लगता है कहीं ना कहीं मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाती हूँ कि मैं फर्स्ट, आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। जी मैम। यस। आते हैं लोग और चले जाते हैं, कौन सही सच्चा है बात है, कौन झूठा नहीं मालूम, लेकिन हम अपनी खुद का बेस्ट फ्रेंड रहे तो वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम जानते हैं हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम जी अपनी वीकनेस को कम करके अपनी स्ट्रेंथ को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, कोई जी हमें दूसरा नहीं बता सकता। जी तो वो आते हैं चले जाएंगे, कभी कुछ अच्छा बोलेंगे कभी बुरा बोलेंगे, जी लेकिन हमें खुद को अपने साथ कनेक्ट करना है। जी तो मैं यही करती हूँ मैम। जी जी। Very nice. So our friend Garima ma'am, she says that she loves to be her own best friend and of course has have friendship with others, but have it at a limited level such that she doesn't hurt others and others don't hurt her. And I resonate with her. And that's really very nice to respect friends and keep them in their place and to respect and love yourself and be your own friend first. यस मैम। That's nice. Wonderful, ma'am. मैम एक बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है मैम। हमने जी देखा है कि बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं आजकल बेघर हो चुके हैं, या तो जी अनाथ आश्रम या होम फॉर द एज्ड में रह रहे हैं। उन जी लोग अपना सेविंग्स पूरा खत्म कर चुके हैं, जी कुछ बचा के नहीं रखे, पूरे परिवार के लिए यूज कर दिए, बच्चों के लिए यूज कर दिए कि भाई अब ऐसा वक्त आया है कि उनको चाहिए उनके थोड़े पैसे, और उनको देने के लिए कोई तैयार नहीं है और सेविंग्स भी नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई जो यूथ है अभी, जो काम करने लगे हैं अभी, जॉब्स पे आए हैं अभी, स्टार्ट करने लगे, क्या उन लोग सेविंग्स स्टार्ट करनी है अभी से रिटायरमेंट के लिए, अपने लिए कुछ बचा के रखना? क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को देख के हम लोग एक लेसन लर्न करना कि भाई पूरे जी पैसे खत्म ना कीजिए, अपने लिए भी कुछ रखिए, नहीं तो हालात बुरे हो जाएंगे। जी मैम। मैम, सेविंग्स तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम लोग बहुत दिखावे में रहने लगे हैं आजकल। मैंने खुद भी नोटिस किया, और बच्चों को भी देखती हूँ, बड़ों को भी देखती हूँ, एक दूसरे को देखकर वो लोग सामान खरीदते हैं, या जैसे अगर किसी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, अगर किसी के पास कार होगी तो वो भी चाहते हैं हमारे पास कार हो। नो डाउट आगे बढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन पहले आप खुद को देखिए। अपनी सेविंग्स आपको करना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ भी हो सकती है। और जैसे हम कहते हैं कि अगर हम मनी की रिस्पेक्ट करेंगे तो मनी हमारी रिस्पेक्ट करेगी। तो हमें सोच समझ के मनी को खर्च करना चाहिए। उसमें हम ये नहीं सोच सकते कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम सोच समझ के मनी को खर्च करेंगे तो लोग हमें कंजूस कहेंगे। नहीं, हमें सेविंग्स भी करनी चाहिए। और वहीं अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, या हम उसके बिना हमारी लाइफ बहुत स्ट्रगल हो रही है उसमें, तो वो हमें ले लेना चाहिए। लेकिन अगर कभी कभी दूसरों को देखकर जब हम कुछ खरीदते हैं तो वो मनी वेस्ट में जाता है। तो हमें सेविंग्स करनी चाहिए अभी से। और ये लेसन लेना चाहिए कि जो सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम हो रही है वो हमें ना हो, क्योंकि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। और जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे पीछे बड़ी वो है, मतलब हमारा घर बड़ा है या कि हम बड़े परिवार से हैं, तो किसी का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके पास खुद अपनी सेविंग्स है तो आप उसको कल यूज भी कर सकते हैं। तो मैम, सेविंग्स करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत खूब, आपका आंसर बहुत अच्छा था। डियर मैम, आपके कोई ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर के लिए?
यस मैम, ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे। एक तो जैसे मेरा एक फील्ड है साइंस का, तो उसमें मैं काम करना चाहती हूँ लगातार। मैं अपनी कुछ लैब खोलना चाहती हूँ, साइंस की लैब, जो रिसर्च के लिए काम करे, बच्चों के लिए काम करे। क्योंकि मैंने ये भी महसूस किया कि जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से दूर होते जा रहे हैं। हम स्कूल्स में थियोरटिकल नॉलेज तो उनको दे रहे हैं, पर प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास बहुत कम है। यानी बच्चों से लेकर जो हमारे यूथ है, उनको हम थ्योरी थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछे कि आपने प्रैक्टिकल में क्या किया, तो वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं करता है। तो मेरा ड्रीम है कि बच्चे जो मैं लैब ओपन करूँ उसमें आए, उसमें काम करे, प्रैक्टिकली देखे, साइंस को फील करे। क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस हमें भगवान के साथ जोड़ता है, हमें गॉड के साथ कनेक्ट करता है। और साथ साथ मेरा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं सोशल वर्क करूं। जैसे आपने बताया, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी मैं काम करना चाहती हूँ, वृद्धाश्रम खोलना चाहती हूँ, यूथ के लिए बहुत सारा मुझे काम करना है। और कहीं ना कहीं लोगों के जो पेन है उनको दूर करना है, उनके मेंटल स्ट्रेस को दूर करना है। तो ये सब मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। धीरे धीरे मैं इन पे काम कर रही हूँ, और एक दिन ये जरूर सक्सेसफुल होंगे, मुझे इस पर पूरा यकीन। जी जी, दैट्स वेरी नाइस। और हमको मालूम भी है कि आप जरूर कामयाब होंगे अपने इरादों में या अपने ड्रीम जी, प्रोजेक्ट्स में, कि भाई आपके इरादे बहुत नेक है, जेन्युइन है, कि सबका भला थैंक करें, यू वेरी खुद का मच भला मैम। हो, सबका भला। यस जी डी। मैम। जी मैम, कोई मैसेज ऐसा है जो आप देना चाहेंगे हमारे टीनेजर्स को, यूथ को, और सभी के लिए, हम सब के लिए? यस मैम, हम लोग बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। तो मैं यूथ को भी ये कहना चाहूंगी कि अपने लिए टाइम निकालें, और बेकार के कंपटीशन में ना पड़े। क्योंकि सब यूथ तो चलिए छोड़िए, पेरेंट्स भी आजकल अपने बच्चों को, हर कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, आईएएस बनाना चाहता है। लेकिन उसके अलावा वो फोर्थ ऑप्शन नहीं रखते, सिर्फ तीन ऑप्शन है। और वो एक दूसरे अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं कि उसके 90% आए तो तुम्हारे क्यों नहीं आए। इससे वो कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ है वो डिप्रेशन में जा रहा है कंटिन्यूअसली। और इसकी वजह से इसके जिम्मेदार पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि वो बच्चों को नहीं समझ पाते, वो अपनी सारे जो वो नहीं कर पाए वो बच्चों के ऊपर थोपते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और यूथ को भी ये कहना चाहती हूँ कि जो वो करना चाहते हैं वो पहले से सोचे समझे, अपने को टाइम दे तब करें। सेकंड, जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया पे बहुत अपना टाइम वेस्ट करता है। मैंने एक सर्वे में पढ़ा था कि इंडिया का 65% यूथ सोशल मीडिया, रील्स, इन पर अपना टाइम गंवा रहा है। तो वो अपना टाइम ऐसे वेस्ट ना करे। उनका जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, क्योंकि ये टाइम चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। उनका टाइम प्रीशियस है, वो सोशल मीडिया को एक अच्छे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, अच्छे पॉजिटिव काम के लिए यूज करें, ना कि रील्स देखने में या और फालतू की चीजें देखने में यूज करें। तो वो अपना टाइम वहां वेस्ट ना करें। सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव चीजें भी सीखने को मिलती है, वो सीखें, अपने स्किल को बढ़ाएं। और जितने भी, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो हमारे यूथ तो छोड़ो, जो हमारे वैसे लोग हैं, सीनियर सिटीजन भी, वो सारे दिन सबके हाथ में फोन रहता है। तो हम जो अपना जो पुरानी चीजें हैं वो हम भूल गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रेस होने के लिए मैं नेचर के साथ नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वॉक करती हूँ। तो सब लोगों ने ये सब छोड़ दिया है। ज्यादातर लोग रात भीतर हमेशा फोन लेके अपने साथ स्पेंड करते हैं। तो हमें ये सब छोड़कर बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, राइटिंग और कुछ अच्छा सुनना चाहिए। तो हमें वो पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए। तो मेरा मैसेज यही है सबको कि अपना जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, तो उस टाइम का आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। जी जी मैम, बढ़िया मैम, दैट्स रियली नाइस। समय का महत्व है हमारी जिंदगी में, और हम उसका सम्मान करना है, आदर करना है। यस मैम, या टाइम इसका इज सही वेरी, इस्तेमाल करना है। यस, रिस्पेक्ट टाइम। ब्यूटीफुल मैम। डियर मैम, ऐसा कोई मुहावरा है या कहावत है जो आप शेयर करना चाहेंगे, कोटेशन? मैम ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारी कोटेशन मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। जैसे ये, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
तो जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो बार बार इन लाइंस को दोहराती हूँ कि वक्त आने पे मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी ठीक है, अगर वक्त मेरे फेवर में नहीं है तो एक दिन मेरे फेवर में भी आएगा वो टाइम, और तब मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ हर पल, हर क्षण अपना बेस्ट देना है और बेस्ट करना है। वाह, वेरी नाइस, वंडरफुल, आई लाइक इट, बहुत खूब, वेरी नाइस, वंडरफुल मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, वेरी नाइस। डियर मैम, आपने इतना सब कुछ हासिल कर लिया कि भाई, यूर अ प्रोफेसर, यूर यू नो अ साइंटिस्ट, यूर एन एंटरप्रेन्योर, यूर अ काउंसलर, यूर अ ट्रेनर, यूर अ कोच, ऑल ऑफ दिस, सब कुछ आप इसमें है, यू आर डूइंग सच अ लॉट ऑफ गुड। सबसे बढ़िया, आपके पढ़ाई में भी आपने एक्सेल कर लिया, बहुत कुछ आपने हासिल जी करा मैम। एजुकेशन फील्ड में भी। तो सबसे बढ़िया प्राउड अचीवमेंट की भाई हाँ मैंने ये किया और मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो ऐसी कौन सी मोमेंट है मैम, वो वाओ, दिस मोमेंट इज वेरी नाइस? मैम अभी तक तो ऐसा, ठीक है मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब मैं उनको पूरा कर लूंगी तो तब शायद मैं खुद को कह पाऊंगी कि वाह ये मैंने कर लिया। अभी मैं उस प्रोसेस की तरफ बढ़ रही हूँ, और क्योंकि मुझे लोगों के लिए काम करना है, तो मैं जब वो काम पूरा कर लूंगी तभी मैं खुद को पे कह पाऊंगी कि हाँ मैंने ये कर लिया। और मेरा ये बिलीव है कि चाहे अच्छा करूं या चाहे बुरा करूं, तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा उस कॉन्फिडेंस में आके उसकी खुशी नहीं मनानी चाहिए, और जब हम दुखी होते हैं तो दुख, उतना दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ गुजर जाएगा, सारा टाइम है, अच्छा भी बुरा भी। तो मैं एक लय में रहने की कोशिश करती हूँ, कि ठीक है मैंने कर लिया, ओके, लेकिन मुझे इससे बेस्ट देना है, बेस्ट करना है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ मैं। जी जी, वेरी नाइस मैम, दैट्स नाइस। डियर मैम, आगे आने वाले 50 सालों में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं आपके नजरिए से, बताइए कि आपको क्या लगता है कि भाई बदलाव ऐसे हो सकते हैं आगे आने वाले 50 years में, व्हाट आर दे? जी, सबसे पहले तो मुझे वही लगता है कि जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें बहुत बदलाव होने वाला है। और जैसे अभी हम ऑनलाइन की तरफ जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई किया करेंगे, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिस तरह से हम नेचर को हर दिन बहुत गुस्सा दिलाते हैं, और आप देख रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे बहुत, मतलब क्योंकि मैं नेचर से अटैच रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नेचर के लिए कुछ करना है। क्योंकि हम हमेशा, आप देखिए, एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को। हम पेड़ काट तो लेंगे लेकिन हम पेड़ लगाएंगे नहीं। तो मैं सबको उसके लिए प्रेरित करना चाहती हूँ कि हाँ, हमें, अगर हम कुछ एक पेड़ काटते भी है तो हमें 10 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। हमें बैलेंस बना के रखना है। तो वो भी बदलाव होंगे, और ज्यादातर जो बदलाव होंगे वो टेक्नोलॉजी को लेकर होने वाले हैं। आगे 50 सालों में बदलाव, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत सारी इस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी जिस पर हम देखकर शायद सरप्राइज भी करेंगे। तो मुझे जो लगता है, और ऑलरेडी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, मार्स पर जाने का मिशन है, या और जो सब मिशन है वो सब लोग कर रहे हैं। और साइंस में लेकर भी बहुत बदलाव आने वाले हैं। तो मैं पूरा एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर बदलाव टेक्नोलॉजी को लेकर होंगे। और जो हेल्थ के बारे में है, मुझे लगता है कि मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल स्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, जो अभी है उससे भी और ज्यादा। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के शिकंजे में पहुंच जाएंगे तो हम मेंटली स्ट्रेस में तो आएंगे ही। तो वहां पर भी वो मुझे लगता है कि बच्चों से लेकर बड़े तक हमें ज्यादा से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और टेंशन्स बढ़ेंगी। लाइफ ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी हमें रहने के लिए। जी मैम, जी मैम, आपने कहा कि मेंटल स्ट्रेस हो जाएगी, दैट इज वेरी ट्रू। तो जी मैम। मेंटल हेल्थ में आप कुछ और बताना चाहेंगे कि भाई लोग उसको कैसे इंपॉर्टेंस दे, कि थोड़े, बहुत सारे लोग जो स्टिग्मा है, तो जी। डर लगते हैं कि भाई छुपा देते हैं अपने मेंटल स्ट्रेस को, यस यस, या छुपा देते हैं। शारीरिक घाव तो दिखाई देती है सबको, लेकिन अंदर जो घाव है मन में और दिल में, उसको छुपाते हैं वो स्ट्रेस को, और खुद खुद घुटते रहते हैं अंदर। तो how do you want the people to come out and share their जी। the mental stress that यस they are यस undergoing? मैम, बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं कि लोग ना डरते हैं। वो सोचते हैं कि ना, फिर लोग मुझे पागल कहना स्टार्ट कर देंगे कि इसकी मेंटल
कंडीशन ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। जबकि वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस ऐसे हैं कि आपके अंदर से होते हैं। जैसे कि हम एक्चुअली क्या है, हमारी जो लाइफ है वो बहुत इतना भागदौड़ है, इतना कंपटीशन है कि एक तो हम एक दूसरे को देख के बहुत जलते हैं। मतलब अगर किसी किसी को आगे तरक्की मिल गई या किसी का प्रमोशन हो गया, तो हम उसको स्वीकार करने के बजाय उससे जलेंगे। तो हमने अपने अंदर फिर से एक स्टार्ट कर दिया, मेंटली खुद को वीक करने, और अंदर से हमें जलन जलन स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले वो हमें नुकसान पहुंचाएगी, दूसरों को तो बाद में। तो इस तरह की चीजों से लेकर हमें स्ट्रेस में रहते हैं कि ये आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं तो यहीं पे रह गया। और कुछ हमारी जो वीकनेसेस होती हैं उसको हम छुपाते हैं और उसमें भी रह के स्ट्रेस में रहते हैं। अगर किसी को कोई देखने में अच्छा नहीं है तो वो स्ट्रेस में रहेगा, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ। जबकि हम जैसे हैं, हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। हम बात करते हुए भी डरते हैं एक दूसरे से, हम डिस्कस नहीं करते हैं। और जैसे मैंने कहा, खुद के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। जो हमारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको हम नहीं करते हैं। एक एक वर्किंग वूमेन, वो पूरा घर का पूरा ख्याल रखेगी, वो ऑफिस भी जाएगी, बाद में आके ऑफिस का भी काम करेगी, घर का भी, लेकिन वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती है। 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए वो कोई टाइम नहीं निकालती है, दूसरों के लिए काम करती है। तो हमें खुद के लिए टाइम निकालना है, तभी हम इस मेंटल स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे। और जो पेरेंट्स भी हैं वो भी अपने बच्चों पर ज्यादा प्रेशर ना डालें, क्योंकि बच्चे बहुत प्रेशर में हैं। मैं बच्चों की स्कूल बैग देखती हूँ, इतने भारी स्कूल बैग हैं, बुक्स ही बुक्स भरी रहती है। और स्कूल्स भी आजकल पढ़ाई कम और वैसी एक्टिविटी ज्यादा कराते हैं। वो मेंटल स्ट्रेस को दूर कैसे करना है वो नहीं बताते। तो बच्चे भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो हमें इस तरह से कुछ अपने लिए टाइम निकालना है और मेंटल स्ट्रेस को दूर करना है और शेयर करना है हमें। अगर हमें ऐसी कोई मेंटली प्रॉब्लम है या हम स्ट्रेस में हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। और डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन वही है ना, जो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कुछ डर लगता है कि लोगों को पता चल गया तो वो क्या बोलेंगे, कहीं हमें ऐसा ना समझे कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। तो हम वो छुपाते हैं, वो सारी चीजें अंदर अंदर घुटते हैं। जी मैम, जी मैम, बहुत खूब आपने कहा, बहुत सत्य है आपकी बातों में, सच्चाई है कि ये सब होती है और इससे हम सतर्क रहना है और ओवरकम भी करना है। जी दैट इज मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डियर मैम, अगर आपको मौका दिया गया पुराने जमाने में जाके किसी और का जिंदगी जी लेना, तो किसका जिंदगी आप चुनना चाहेंगी? मैम ऐसे तो मैंने सोचा नहीं है कि इसका मतलब कि पुराने जमाने में जाके किसी और की जिंदगी जीना। लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका दिया गया पुराने जमाने में कुछ करने का, तो मैं एक अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहूंगी। मतलब जैसे अब्दुल कलाम जी हैं, तो मैं वहां जाके उनकी जिंदगी जीना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत काम किए। और इस तरह से हमारे कुछ जो क्रांतिकारी भी थे, उन्होंने भी देश के लिए बहुत काम किए। तो मैं इस तरह की लाइफ जीना पसंद करूंगी। जी मैम, वेरी नाइस। डियर मैम, अगर द यूनिवर्स और द ऑलमाइटी, भगवान जी या यूनिवर्स कह सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो है, जी यू नो, आपको एक तोहफा दे दिए कि एक सुपर पावर, गरिमा जी सुपर पावर आपके लिए है, आप चुनिए, आप कौन से सुपर पावर आपको होनी है, तो आप कौन सा सुपर पावर चुनना चाहेंगे? कौन सा मैं शक्ति, महाशक्ति? मैं कुछ ऐसी शक्ति चुनना चाहूंगी कि जिससे कि मैं लोगों के दर्द को एब्जॉर्ब कर सकूं, सोख सकूं। क्योंकि बहुत लोग बहुत दर्द में हैं, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। तो मैं इस तरह की सुपर पावर लेना चाहूंगी कि मेरे हाथों में सुपर पावर आ जाए और मैं उनको उनको उनके जो दर्द है, पेन को खुद एब्जॉर्ब कर सकूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डियर मैम, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्रिटिसिज्म अलग होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। जी वी जी। आर आस्किंग यू अबाउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आजकल बच्चों को थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिए तो भी फील हो कि आत्महत्या कमिट कर रहे हैं या फिर हाँ कट ऑफ जी हाँ कर जी। रहे हैं। तो फिर लोग कैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपनाना है या एक्सेप्ट इट? आप सही कह रहे हो कि जो क्रिटिसिज्म है वो, चाहे वो हम कंस्ट्रक्टिव ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं
वो एकदम नाराज हो जाता है कि इसने मुझे क्रिटिसाइज किया। तो जो हमारी यूथ है, वो वो भी इस तरह से क्रिटिसाइज, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे हम कंस्ट्रक्टिव वे में करें, वो उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर पहले से ही बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, जिसे हमें निकालना है। तभी तो हम कुछ, अगर कोई पॉजिटिव बात कहेगा, तभी तो हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। हम उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, उसको गलत वे में ले लेते हैं। जैसे कि आपने मुझे कोई, अगर मुझे क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो क्रिटिसाइज करना मुझे हेल्प करेगा मेरे कैरियर में या मेरे फ्यूचर प्लान्स में, तो मुझे उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और अपनी जो वीकनेस है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, हम भूल गए हैं स्वीकार करना। हम जैसे हैं, हम खुद, और जो हमें भगवान ने बनाया है, हम कुछ और बनना चाहते हैं, हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। जो मुझे भगवान ने बनाया, मैं उसकी अपनी उस आइडेंटिटी को छोड़कर कुछ और बनना चाहती हूँ। मैं, मेरे अंदर क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं या पॉजिटिवनेस है, वो मैं भूल गई हूँ। तो हमें उसको पहले बाहर निकालना है। तो हमारा जो यूथ है वो भी यही करता है, वो भूल गया है कि उसमें क्या पॉजिटिव चीजें हैं, वो क्या अच्छा कर सकता है। लेकिन वो दूसरे जो कर रहे हैं वो करना है। और अगर आप क्रिटिसाइज करोगे कि तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, तो वो एकदम बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। और वो फिर इस तरह के कदम उठाते हैं, सुइसाइड, या फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे, या फिर उनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले खुद को एक्सेप्ट करना है, हर चीज को। जी मैम, दैट्स रियली वेरी नाइस। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। डियर मैम, आप दूसरों को जल्दी माफ कर देते हैं, हाँ या ना? यस मैम, माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर हम अंदर गुस्सा होकर रहेंगे, तो वो मुझे ही हार्म, नुकसान पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। वो जो नेगेटिविटी है वो मुझे ही अंदर अंदर जलाती रहेगी। इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं बार बार उसको याद करती रहूंगी, और शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो इसलिए मुझे दूसरों को माफ कर देना चाहिए और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। वो जो कर रहा है उसको करने दो, वो उसका ऐसे ही नेचर है, शायद भगवान ने उसको ऐसे ही बनाया है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको माफ करके, मैं उसकी नेगेटिविटी अपने ऊपर क्यों लूं? तो मुझे माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। बार बार सोचने से फिर से वो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में बार बार आते हैं और हमें ही परेशान करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमें पास्ट में नहीं रहना है, हमें मूव ऑन करना है, तो हमें मूव ऑन करना चाहिए। बढ़िया मैम, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट आंसर, दैट्स वेरी नाइस। डियर मैम, वी कम टू द एंड ऑफ द मेन राउंड ऑफ द इंटरव्यू, तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हम आपको फिर बुलाएंगे क्योंकि आपके पास और बहुत सारे है यस इंफॉर्मेशन जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे लिए, यस मैम। हमारे दर्शकों के लिए, हमारे गेस्ट्स के लिए। तो वी नो दैट अभी एक और 5 मिनट ले लेंगे आपसे। जी मैम। इट इज कॉल्ड एज रैपिड फायर राउंड मैम, जहां पर आंसर्स एक शब्द या 2 शब्द के बीच में रहेगा, ओके छोटी ओके। सी। ओके, तो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में है। इतना सब कुछ प्रोफेशनली बात कर चुके हैं हम, तो अभी थोड़ा सा पर्सनल, यस एंड मैम। गेट टू नो द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इज यस मैम। दैट ओके? My dear friends, we had a lovely time. 1 hour we spent with Garima ma'am, and she gave us a good insight on how to live life. जीवन कैसा जीना है, किस तरीके से जीना है, आगे कैसे बढ़ना है, गरिमा जी से सीखे हैं। अभी हम जाएंगे रैपिड फायर राउंड पर, जहां पर मैडम के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में जानेंगे। ज्वाइन मी माय डियर फ्रेंड्स। मैम, आपको केक्स, चॉकलेट्स या आइसक्रीम्स पसंद है? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। ओके, बहुत अच्छा, बढ़िया, दैट्स वेरी नाइस। समर, विंटर, रेनी, ऑटम और स्प्रिंग सीजन, कौन सी सीजन अच्छी लगती है? विंटर। विंटर। यू लाइक टू ट्रैवल बाय लैंड, वाटर और एयर? एयर। यू लव टू स्टे इन अ सिटी, अ विलेज और अ टाउन? विलेज। व्हेन यू हेल्प अदर्स मैम, डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न? नो। योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट डे, एक सुंदर सा दिन, बस एक शब्द में। रिलैक्स। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत खूब। मैडम, आप पकाना जानते हैं, अच्छा पका लेते हैं, हाँ यस या मैम। ना? यस। यस यस। ऐसे बता सकते हैं आपका फेवरेट रेसिपी का नाम? कढ़ाई पनीर। ओह ग्रेट, वंडरफुल। आपका फेवरेट टीचर या सर के नाम जब आप स्कूल में थे? ममता मैम। आप सुबह सुबह में उठ जाते हैं या देर रात तक जागते हैं, कैसे आपका नहीं, सुबह? सुबह सुबह। सुबह, 3 o'clock। अर्ली बर्ड। ओह ग्रेट, अर्ली बर्ड, दैट्स नाइस। आप सॉल्टी, स्वीट या स्पाइसी फूड पसंद करते हैं?
सॉल्टी। इसीलिए मीठा। तुम स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन यू यस सेड मैम। नाइस, लकी। थोड़े लोग हमारी जैसे जो है ना, मिठा नहीं मिला तो फिर थोड़ा तो भी यस रहना यस। एक दिन के लिए। अच्छा, तो सॉल्ट इज गुड, दैट्स नाइस। मैम ये क्वेश्चन ऐसा है, क्या जीवन सिर्फ पैसा है? क्या जीवन सिर्फ सुख है? या जीवन सिर्फ पैसा और सुख या खुशी, हैप्पीनेस एंड मनी? जीवन खुश सुख है, एंड हैप्पी मनी से सुख आएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसके पास मनी है वो भी परेशान है, वो भी कहेगा हेल्थ हेल्थ को लेके परेशान है, किसी और परेशान है। तो हर लेवल पे कोई ना कोई परेशान है। आप जिससे भी बात कर लोगे, चाहे वो गरीब है वो परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है, जो अमीर है वो परेशान है, उसके पास हेल्थ नहीं है, तो हर कोई परेशान है। परफेक्ट, परफेक्ट। Hats off to this answer. Wonderful. That's really very nice. That's beautiful, ma'am. Thank you for sharing. Dear ma'am, the next question. Are you an introvert, an extrovert, or an ambivert? इंट्रोवर्ट। Yes, dear. मैम, जब आप अकेले रहते हैं, कोई गैजेट आपके सामने नहीं है, और आपके आसपास आप कोई भी फ्रेंड या पेरेंट्स या फ्रेंड फैमिली मेंबर्स कोई भी नहीं, आप अकेले हो एक रूम में, और बस बाहर से अच्छा सा धूप आ रही है, सनशाइन, आपके कमरे में सनशाइन आ रही है, तो तब आप अकेले बैठकर सोचते रहते हैं, तो आपका सोच आपको कहाँ ले जाती? पास्ट में ले जाती है, या नहीं तो फ्यूचर में ले जाएगी वो, या और इज इट कनेक्टेड टू योर प्रेजेंट? ये जो आपने कहा ना धूप आ रही है, तो मुझे विंटर में जो धूप आती है ना, ये बहुत पसंद है। तो जब ये धूप आती है तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि उसकी रहमत बरस रही है मेरे ऊपर। हाँ, तो मैं उस धूप में ऐसे महसूस करती हूँ कि भगवान या गॉड या ऑलमाइटी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और धूप के जरिए, और वो धूप मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो अगर मैं अकेली हूँ और वो धूप आ रही है तो मैं कनेक्ट हो जाती हूँ गॉड के साथ, कहीं ना कहीं इस धूप के जरिए। इसलिए मुझे विंटर बहुत पसंद है। जी जी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैम, दैट्स वंडरफुल। डियर मैम, आपको सोशलाइजिंग अच्छा लगता है या मी टाइम? मी टाइम ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मुझे काम करना है तो सोशल भी होना पड़ता है, और सोशलाइजिंग करती हूँ, लेकिन ज्यादातर मुझे मी टाइम अच्छा लगता है। जी, मुझको भी द सेम। सोशलाइजिंग अच्छी लगती है, मी टाइम बहुत अच्छा लगता है। जी मैम। यस मैम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को महत्व देते हैं, या किताबों से जो पढ़ते हैं उसको महत्व देते हैं, या दोनों को भी? मैम वैसे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपको वो सिखा जाते हैं जो आपको किताबें नहीं सिखा सकती। क्योंकि कभी कभी किताबें तो किसी और के एक्सपीरियंस पे लिखी गई हैं, लेकिन जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है वही आपका रियल एक्सपीरियंस है। तो इसलिए एक्सपीरियंस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैम एक कहावत है ना कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता। तो हमें खुद मरना पड़ता है, खुद काम करोगे तभी तुम्हें कुछ पता चलेगा। दूसरे मर गए और उन्होंने स्वर्ग देखा, तुम्हें कैसे पता स्वर्ग कैसा है? मैम मैं इसमें बिलीव करती हूँ। परफेक्ट मैम, दैट्स रियली नाइस, परफेक्ट, वेरी नाइस। डियर मैम, आपको बीच पर रहना पसंद है थोड़ी देर के लिए, या फॉरेस्ट के अंदर जाकर चलना है, वॉकिंग करना है अच्छा लगता है? मैम मुझे वैसे ज्यादातर बीच पर रहना अच्छा लगता है, क्योंकि धूप आ रही है, पानी भी है, और बीच पर नंगे पैर चलना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो सेकंड ऑप्शन फॉरेस्ट और फर्स्ट ऑप्शन बीच। ग्रेट मैम, वुड यू लाइक टू सिंग फॉर अस? हमारे लिए एक छोटी सी गाना गा सकते हैं आप? मैम मैं भजन गा के सुना देती हूँ जी आपको। जी 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 मैम। जी। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, राधा का भी श्याम तू तो मीरा का भी श्याम। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर सिंगिंग दैट सॉन्ग फॉर अस। वो भजन बहुत अच्छा था। वेरी नाइस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी एक क्वेश्चन बाकी है जो अभी आपके पास, वी विल कम बैक टू यू। Dear ओके मैम। friends, it was a lovely session with Dr. Garima Sharma ji from Uttarakhand. Am I right, ma'am? यस Uttarakhand? मैम, यस मैम।
Yes, dear. From Uttarakhand, if you'd love to avail her services, you love to get connected with her, she's open. She encourages youngsters to, go into invention, discoveries. She would love you to be scientist. She's a young scientist, entrepreneur, a psychologist, and all of that, and a professor as well. She would love you to be one of, the best people in the world. My dear friends, we all know that there are 3 magical words. Ma'am, हमको सबको मालूम है 3 magical words है, वो please, सॉरी और थैंक यू. जब कभी हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बड़े लोग जो हैं, जब किसी से बात करते तो आप प्लीज, सॉरी और थैंक यू का इस्तेमाल कीजिए, सिखा दिया. तो इसके अलावा हम हमेशा जो हमारे सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल फैब टॉक्स पर, एक निवेदन है और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखते हैं कि भाई आपकी तरफ से 3 मैजिकल वर्ड्स शेयर करें हमारे साथ. जी मैम, फर्स्ट मैजिकल वर्ड है बिलीव. बिलीव योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास करना. सेकंड मैजिकल वर्ड, ये भी गुजर जाएगा, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, कि जो भी सिचुएशन है अच्छी या बुरी सब गुजर जाएगी, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहो. थर्ड मैजिकल वर्ड है कि स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हार्ड वर्क के बजाय. क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा था, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लगा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि हम अपनी लाइफ को प्लान ही नहीं करते हैं, अनप्लान्ड लाइफ जीते हैं. और जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि कल का आपका क्या प्लान है, तो वो नहीं बता पाएगा मेरा कल का क्या प्लान है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को प्लान नहीं करते, ऐसे ही चले जा रहे हैं. तो हमें प्लान करना है, और कभी भी फियर में नहीं रहना है, प्रेशर में नहीं रहना है, और कंफ्यूजन में नहीं रहना है. ये 3 और मैजिकल वर्ड में दे रही हूँ, नो फियर, नो प्रेशर एंड नो कंफ्यूजन. क्योंकि जब ये तीनों आते हैं तो हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. और अगर ये तीनों नहीं है तो हम बहुत रिलैक्स, काम एंड कूल रहते हैं. तो ये 3 मोर मैजिकल वर्ड है व्यूअर्स के लिए. Yes, dear ma'am. Thank you so much for your time. Thank you for your energy. Thank you for the positivity. आपने हमारे लिए वक्त निकाला इंटरनेशनल फैब टॉक्स का प्लेटफॉर्म पर आने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. हम ये जानते हैं कि भाई आपके पास बहुत वर्क है बाकी करने के लिए, फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए. धन्यवाद मैम इसके लिए. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. और मैम मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ी, इंटरनेशनल फैब टॉक के साथ जुड़ी. और जो काम आप कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही मोटिवेट करने वाला काम है. क्योंकि आप इंस्पायर कर रही हैं लोगों को अपने शो के, फैब टॉक के थ्रू. हर किसी से आप पूछ रही हैं उनकी लाइफ जर्नी, और दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रही है. तो मैम ये बहुत 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 अच्छा काम है आपका. और किसी भी तरह मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी इसके जरिए. अगर कोई भी ऐसा हो, ऐसा प्रोजेक्ट या काम है जिसमें मैं आपके साथ आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं जरूर आपकी हेल्प करना चाहूंगी. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए. आशा करती हूँ कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो मेरे इन बातों को सुने, और जितना भी हो सके फॉलो करें. जरूरी नहीं कि फॉलो करें, थोड़ा इंस्पायर हो जाए, वही बहुत है. और थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू मैम सो मच. दैट्स रियली वेरी नाइस. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप इतने नेक इरादे, आपके मन बहुत साफ है और जेन्युइन पर्सन है आप, कि भाई आप सबका भला चाहते हैं, खुद के भला, सबके भला. और आपने हमारे लिए बहुत अच्छे बेस्ट विशेस भी दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. एंड मैम सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मैं ये विश करती हूँ कि आपका जो फैब टॉक है ना मैम, ये देखिएगा बहुत 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 लोगों तक जाएगा, लाखों करोड़ों लोगों तक, और सब लोग इनसे इंस्पायर होंगे. मेरी यही विशेष है मैम आपके लिए. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you so much. Thank you very, very much. God bless you. Thank you for that beautiful, ending. That's very nice. Actually, it's a new beginning, my dear friends. She has given me a lovely feeling to feel good, to be inspired by all the common people. And you should also come forward like Garima ji, spread your light. She is a candle spreading a light in the world. आप एक कैंडल है मैम, जो लाइट स्प्रेड कर रहे हैं सबके लिए. तो आपकी तरह सभी लोग रहना है, आगे आना है, और सबके लिए शेयर करना है, और एक अच्छा सा जिंदगी बितानी है, और दूसरों को भी चांस देनी है. दैट्स वेरी नाइस. थैंक यू. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत धन्यवाद. एंड हैप्पी दिवाली टू यू टू. थैंक यू मैम. थैंक यू. स्टे सेफ.
My dear friends, with this, we'll end the International Fab Talks. Thank you so much, dear friends, for being with us. You are welcome to join us at any time. And of course, follow all the instructions and advices and suggestions given by Professor Garima Sharma from Uttarakhand. She's a lovely soul, and be in touch with her. And of course, stay safe and stay blessed. We end the Fab Talk show for now. God bless.